Good evening, ladies and gentlemen. As you just saw, today there was a Sangam of Astha and our Sanskriti on the banks of Triveni Sangam. The morning chill of Prayagraj was awash with the glow of devotion as almost 1.5 crore people took the holy dip at dawn, while stars were still twinkling in the sky. As Prayagraj hosts the Purna Kumbh, in fact, it is the Purna Mahakumbh after 12 years, and this Mahakumbh is once in 144 years. On display was the deep-rooted faith of an ancient civilization. Prime Minister Modi has called this a day to cherish Bharatiya values and culture and said it's bringing together people in a sacred confluence of faith, devotion and culture. Meanwhile, Chief Minister Yogi Adityanath has said that Mahakumbh delivers the message of unity in diversity and called it Ekta Ka Mahakumbh. While Bharat today unites to celebrate faith and harmony, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav finds failure not faith. He has tweeted this video of a man complaining about the lack of water, saying, "Bina pani sab suna." Devotees that have thronged the ghats from across the world to take a holy dip, Akhilesh Yadav even mocked their devotion, saying some only come to Kumbh to wash their sins. Paap dhone aate hain kuch log. Just yesterday, he quoted Vivekananda, saying people need roti more than their religion. Of course, Chief Minister Yogi Adityanath was quick to point out that Vivekanand ji had also said, "Garv se kaho, hum Hindu hain," something that Akhilesh Yadav forgot to mention. Meanwhile, his party generals added insult to injury, while Sunil Sajan said that these sons shouldn't toe the line of BJP and RSS, and Samajwadi Party Neta Afzal Ansari asked, are the Kumbh funds being used or looted? But if Samajwadi Party has alleged loot in the name of Mela, mocked the holy dip and accused saints of towing the RSS's line, why is the statue of their own founder, Mulayam Singh Yadav, installed at the Mahakumbh itself? Why are there posters of Mulayam Singh Yadav's Kumbh Snan splashed across the site? We will discuss this duplicity in just a bit, but first, watch the Sanatan slander by Akhilesh and his lieutenant. जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे, जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा। आज के समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की लाइन है, उस पर कम से कम जो सम्मानित पूजनीय साधु संत हैं वो ना जाएं। हम लोग कुंभ पर सवाल नहीं है, कुंभ के नाम पर जो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार है उस पर तो सवाल होगा। इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं वो उसकी व्यवस्था और इंतजाम करती रही हैं। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। You just heard how faith and funding were questioned by the Samajwadi Party. Now watch these visuals on your screens. The Mulayam Smriti Seva Sansthan set up a camp and installed an almost 3-foot statue of late Netaji. They said this is a tribute to a sant of social service. After the Kumbh Mela, this statue will be kept at the Samajwadi Party's headquarters. There are also posters across this camp which display Mulayam Singh Yadav's Kumbh devotion. He is also shown taking a holy dip. There are also pictures of sand art depicting Mulayam Singh Yadav.
On the other hand, his son Akhilesh Yadav, the tallest opposition leader from Uttar Pradesh, has not yet suggested whether he will visit Kumbh or take a holy dip, but he has made it clear that he would go for Punya and Dan, never for Paap, which many go there to wash out. He didn't even speak up when the Waqf board claimed that Kumbh Mela grounds belong to the Waqf. Watch the war of words over the duplicity. हमारे एक साथी ने कुंभ में नेताजी की मूर्ति लगाई है, एक कुटिया बना करके, क्योंकि नेताजी पर भी करोड़ों लोगों की आस्था है। नेताजी सामाजिक संत थे। Look at the irony of it. Mr. Akhilesh Yadav is politicizing the Kumbh and making political comments related to the Kumbh. On the other side, his father's statue is being put up there only by people within his party. Now, isn't this even a greater attempt to politicize the event in some way or the other? Not a word was said against the person who said that this is the Waqf land. So, ladies and gentlemen, is Ekta Ka Mahakumbh being politicized by the Vipaksh? Is the Jittery India Alliance trying to target Modi and Yogi even when the world is hailing this Sangam of Astha, Sanskriti and Itihas? The legitimate question that we are asking on the News Hour tonight: why politicize Astha just for political gains and appeasement? That's the question, and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining the debate tonight, Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP, in our studios tonight. Ratan Sharda, author, joining us from Mumbai. Tushar Gupta, political analyst. Also joining the debate tonight, Tehseen Poonawalla, Congress supporter. Vivek Srivastava, left supporter. But my first question goes to Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party, in our studios tonight. Vivek Silas ji, straight off the bat, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सफाई महोत्सव पर कभी भी रोटी का ख्याल आया? कभी भी for years and years and years together, Haj subsidy has been given by various governments. Have the Samajwadi Party people ever raised the question of roti at that time? Why does all of this come in only when it is a festival, it is a matter of faith, it is a issue that concerns Sanatan or Hinduism? Why is that always something that irks the Samajwadi Party? देखिए, रोटी का जहां सवाल है नाविका जी, उस पर सवाल तो बिल्कुल उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे देश में 82 करोड़ लोग जो हैं उनको राशन दिया जा रहा है, वो राशन पे आश्रित हैं, तो रोटी का सवाल तो इस देश में सबसे पहले होना चाहिए. एंड मोर देन दैट, look at what is happening, where the dollar is going, where the economy is going. Today, dollar has gone up, crossed 86 mark, and where the Sensex is falling every day. तो इंडिया की इकोनॉमी जब नीचे गिरती जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट होता जाएगा, तो बिल्कुल रोटी पे तो सवाल उठेंगे. एंड इफ यू सी व्हाट हैपेंड इन कुंभ, the nishads, the boatmen, or the people who are the boatmen or the sailors in Ganges, they are not allowed to go in. The same was a question raised by Sanjay Nishad, who is a cabinet minister and a supporter of the Bharatiya Janata Party in the central government and also in the state government. He raised the same question, that why the nishads are being deprived of going into the Ganges. क्योंकि निषाद वहां तो सालों साल से चले आ रहे हैं नाविका जी, वो सालों से, हजारों साल से वहां नाविक हैं, वहां पर बोट चला रहे हैं, उनको क्यों रोका गया? उनकी पेट पे क्यों लात मार रही है भारतीय जनता पार्टी? और ये तो कहा गया है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, और उन्हीं केवटों को आज डिप्राइव किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से के द्वारा, और उनके पेट पे लात मारनी है. तो रोटी पे सवाल उठाना तो बहुत जरूरी है, और ये सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं उठा रही है, ये संजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, वो भी इस सवाल को उठा रहे हैं. Very quickly, Shehzad Poonawalla. and I hope Mr. Silas won't interrupt because I've heard him patiently. निषाद की इतनी चिंता है तो निषाद बेटी के साथ नवाब यादव ने बलात्कार किया, डीएनए रिपोर्ट आई, आपकी प्रवक्ता ने बोला कि 15 साल की बच्ची वहां पे नौकरी ढूंढने गई थी, आपने निकाला नवाब यादव को.
वो तो आपके साथ खड़े हैं। जहां तक सवाल है तो मुझे बताइए कि आज जब ये आयोजन हो रहा है, 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, 2 लाख करोड़ की इनकम और जीडीपी जनरेट होगी, ये सीएआईटी की रिपोर्ट है। जब काशी विश्वनाथ धाम बना वहां पर 13 करोड़ पर्यटक गए। अब अयोध्या हैज ओवरटेकन आगरा एज द मोस्ट विजिटेड प्लेस, वहां पर लगभग 13 करोड़ लोग जाएंगे और गए हैं, तो उससे क्या इकोनॉमी जनरेट नहीं होती? इनफैक्ट वहां पर हर समाज को अर्निंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पर मेरा सवाल यह है कि अगर आप इतने ही चिंतित है तो 3-4 सवाल है मेरे महाकुंभ को लेकर। आपने कहा महाकुंभ को लेकर हमारा कोई विषय नहीं है ना, तो आपके एमएलए है ओम प्रकाश सिंह, कहते हैं ठंड में मरोगे क्या? हज के बारे में या वेटिकन के बारे में बोलकर दिखाओ। आपके दूसरे सांसद है अफजल अंसारी, वो कहते हैं कि एक ट्रेन भर के गांजा फूंक देते हैं साधु संत, उस पर बहिष्कार भी किया गया था। और आपको पता है 2013 में आपने क्या किया था? सुन लीजिए, 2013 में सीएजी रिपोर्ट आई कि आपने फंड खा लिए थे, सैफई में लगा दिए थे और 42 लोगों की हत्या हुई थी, क्योंकि उस समय पर किसी हिंदू को नहीं बल्कि आजम खान को इंचार्ज बनाया था। आप बताइए महाकुंभ का इंचार्ज। अब मेरी बात, लास्ट बात, आप अगर महाकुंभ के इतने चिंतित है तो वक्फ क्लेम कर रहा था, आप खंडन कीजिए वक्फ का कि महाकुंभ की जमीन कैसे क्लेम कर ली। और मठाधीश माफिया होते हैं, ये किसी और धर्म के बारे में बोलोगे? रामचरितमानस को बोलते हैं जला दो, आप एक बार दूसरे धर्म की किताब के बारे में बोल के दिखाइए। आप बोलते हैं कि हम लोग जो है केवल रोटी की चिंता करते हैं, तो बता दीजिए कि हज हाउस क्यों बनाते हैं? अभी ऐलान कीजिए कि हज हाउस नहीं बनाएंगे, बोले हज सब्सिडी नहीं। प्लीज टुडे कमिट ऑन द न्यूज आर दैट हज सब्सिडी इज बैड. All government subsidies should go towards giving food to poor people. देखिए नाविका जी, जिस दुखद घटना का इन्होंने चर्चा की अभी, जहां 42 लोग की जान चली गई थी, हत्या नहीं हुई थी, पहली बात हत्या नहीं हुई थी। हज सब्सिडी पर पहले कह दीजिए। उसमें भी आऊंगा नाविका जी, बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, किसी सवाल से भागूंगा नहीं। वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक स्टैम्पीड हुआ था। किसकी सरकार थी? रेलवे किसकी थी उस समय? 2013 की घटना है ये। किसकी थी रेलवे? जो थी वो किसकी थी? यूपीए गवर्नमेंट में थी। हाँ, तो तिरुपति में भी स्टैम्पीड हुआ था, 5 लोग मारे गए थे, वो भी दुखद थी। वहां भारतीय जनता पार्टी क्या जिम्मेदारी लेगी? आप लेंगे जिम्मेदारी? मैं आपको एक सवाल पूछूं, और सुनिए, एक सवाल पूछूं। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। नहीं, इसी में जो बात और आपको बता, आप जवाब दर्शकों से भी यही कहता हूं, आजम खान आप 1 मिनट रुक जाइए, मुझे सुन लीजिए। दर्शकों की ये बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म की बात करती है, सनातन की ठेकेदार बनती है, ये वही जगह है जहां लाखों लोगों को लकड़ी नहीं मिली थी, हिंदुओं को दफना दिया गया था, वहां पर लाशें इसी मां गंगा में बह रही थी। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और ये सनातन में बात करेंगे, आज ज्ञान देंगे हमको बैठ के। ये देखिए, ये झूठी और फर्जी बातें करने बंद करिए आप। अच्छा, आप 10 सेकंड आप ही में बोलना, मैं 10 सेकंड ही लूंगा। आप एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, कोई आप मुझे बता दीजिए कि सबसे पायस जो ओकेजन होता है उसका अध्यक्ष या हेड कोई हिंदू को बनाएंगे आप? पर महाकुंभ का अध्यक्ष आपने कैसे आजम खान को बनाया? भाई उन्हीं की मिनिस्ट्री में वो आ ही रहा था, अर्बन डेवलपमेंट में। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आजम खान थे, उसी के अंडर ही आ रहा था, और किसको अध्यक्ष बनाते? अच्छा, तो आप उनको अवार्ड नहीं मिला, आपको क्या दिक्कत है? एक सेकंड, अवार्ड नहीं मिला। और आपने बोला 42 लोगों का मरना दुखद था ना? बिल्कुल दुखद था। आजम खान ने बोला कि हमें पता नहीं था इतने लोग आ जाएंगे। आप कंडेम कीजिए। नहीं, अच्छा, तीसरी बात कह ही रहा हूं कि चलिए छोड़ दीजिए, तीसरी बात घटना थी। अब मैं छोड़ दीजिए, इस विषय को छोड़ दीजिए। आसान सवाल पूछता हूं, महाकुंभ तो लाखों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है, बिल्कुल ठीक है, जब से आदिकाल अनादिकाल से। मुझे बताइए, वक्फ क्लेम करता है महाकुंभ की जमीन, कंडेम कीजिए। पहले आप मुझे बताइए, पहला महाकुंभ कब हुआ था? मैं कंडेम करता हूं, तो मुसलमानों को कंडेम करता हूं। आप कंडेम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी कंडेम नहीं करेगी वक्फ का, वक्फ की अतिक्रमणकारी वांछित का नहीं करेगी। लॉजिक था, ये चाहते हैं कि जो करोड़ों साल पुराना है, people who have supported Hajj subsidy for centuries are now today asking what is the logic of doing Mahakumbh at this level. I want to ask you, Vivek Srivastava. क्या पास्टर के बारे में बोल सकते हैं? No, Vivek Srivastava, one minute. Vivek Srivastava, I want to ask you, should Hajj subsidy be stopped henceforth? Because धर्म नहीं, रोटी देनी चाहिए ना लोगों को। Because महाकुंभ के समय तो रोटी याद आ रही है। So why should Hajj subsidy be given? को बंद कर दीजिए आप। हाँ? आप सब बंद करिए फिर। हाँ, बिल्कुल सब बंद कर दीजिए, रोटी की बात। I want to ask you, Safai Mahotsav used to happen. Why was no issue raised about roti at that point of time? I want to ask you, was there no single poor person in Uttar Pradesh in India when Safai Mahotsav used to be celebrated?
I want to ask you this question. No. Now you see, this is a diversion. It is Why very clear diversion? and I have number one. महाकुंभ पर रोटी याद आती है तो तब क्यों नहीं आई थी? How is it a diversion? सुनिए, हज सब्सिडी बहुत ही कम होती है कंपेयर टू व्हाट वी आर स्पेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो क्या बुराई है उसमें? अगर मुसलमानों के लिए भी थोड़ा खर्चा कर दिया तो दर्द हो रहा सबको। अच्छा, थोड़ा कुंजूम खर्चा कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? विवेक जी एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव जी एक सेकंड, सब्सिडी, विवेक जी एक सेकंड, एक वाक्य, विवेक जी एक वाक्य, नहीं लगेगा और किसी विवेक जी एक वाक्य, इसी पे एक वाक्य, विवेक जी एक वाक्य, भड़के मत, एक वाक्य आपसे, एक संवाद आपसे। हाँ, आपने बोला हज सब्सिडी तो बहुत कम होती है, टेम्पल तो देश के लिए टैक्स देते हैं और 2000 करोड़ जाता है तो उसमें 2 लाख करोड़ जनरेट होता है महाकुंभ में। आप बताइए कि कौन सी मस्जिद टैक्स देती है? नहीं, कितना टेम्पल टैक्स देते हैं? अरे वो देते हैं, टेम्पल के ट्रस्ट सारे टैक्स दे रहे हैं, टेम्पल के ट्रस्ट हॉस्पिटल चलाते हैं, टेम्पल के ट्रस्ट डोनेशन देते हैं, टेम्पल के ट्रस्ट से आधा काम चलता है, तो वो छोड़ दीजिए, टेम्पल का एक पैसा ना लो, टेम्पल मत लो। Temples are controlled by the state. Temples are not with the temple authorities. I want to get in Ratan Sharda. Ratan Sharda, रोटी का सवाल क्यों नहीं उठाया जाता जब हज सब्सिडी होती है? Why is the roti not an issue when the Safai Mahotsav takes place? I want to ask you, why does the roti become an issue only when there is a Mahakumbh discussion? Why does it become a statement? जो लोग पाप करते हैं वो पुण्य धोने जाते हैं महाकुंभ में. I want to ask you, the 1.6 crore devotees who were there today, are they all papis? Now, because I would not like to go down to the level of Samajwadi Party, who is out to insult Hindus, out to demean the Hindu faith, and one of the longest lasting, ageless, biggest festival of faith in Bharat, that is Kumbh Mela, that in Prayagraj, which is the biggest gathering of the people, not now, from time immemorial. बीच मत बोलिए, चुप करिए आप मत बोलिए। A Nastik has no right to ask me question, who does not believe in Hindu religion, Hindu dharma or Hindu itihas. I don't want to speak to him. Now coming to this issue, see, this is a very big academic idea and political secular left idea of demeaning every kind of faith of Hindus. There have been papers written to demean the festival, paper written to say how it is a waste of money and how it is dirty and all. But this festival has been going for thousands of years. At least Huyen Tsang has given evidence of 7th century BC. So let us not get into that 7th century CE. But it is much more older than. Nobody knows the origin of this because it belongs to a very long story. So I will not have to go to demean that level. Now, these people who talked about 2013, which is famous for Azam Khan episode and also famous for the CAG report, which condemned the misappropriation of funds also, even in that particular Mahakumbh in 2013, the investment was 1300 crores, the return was 12,000 crores in Prayag. In 2019, as per CI report, the investment was 4,200 crores and return was 1,20,000 crores in 2019. And Sandeep Singh gives the figure, who has written Temple Economics, that this time the investment is 125,000 crores. You can imagine the returns. Not only that, the employment during 2013, the very mismanaged Kumbh was 6,35,000 as per SHM report. If this is not roti, what is roti? And further, if you go, this continuous tourism, if you look at in Kashi last year, 2023, 32 tourists visited Kashi. In 6 months of 2024, 33 crore people visited Ayodhya. Is it not low cost income of tourism? Is the lowest cost per annum per capita for getting the employment? GDP under Samajwadi Party, the Roti government, as per them, GDP was 13th or 14th rank of UP was 13th or 14th rank. Today, a sadhu, a sannyasi has taken it over, and what is the return of the Roti? It is 3rd rank in the GDP in India. Further, Mulayam Singh Yadav, who was a skeptic and who did not believe in this religion, if these people don't believe in religion, why is this statue there? Further, I will give a quote. They have to tell me who the person was. भारत माता हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो और राम का कर्म और वचन दो, हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो. ये किसने कहा होगा? सैलत साहब, आप बड़े एक्सपर्ट हैं. ये राम मनोहर लोहिया, जिसके नाम पे इनकी राजनीति चलती है,
उनका एक कहावा वाक्य है, अगर आपके लोहियावादी राजनीति के जनक वो ये बात हिंदू आस्था के बारे में कह रहे हैं, रामकृष्ण शिव के बारे में कह रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए लोहिया का नाम लेते हुए, इवन नेताजी का नाम लेते हुए। और कृपया हमारी इस बहुत महत्व वाली 144 साल में कुंभ मेले को अपने घटिया मिल्कीपुर के बाइपुल से मत जोड़िए। आप जीते हारे में फर्क नहीं पड़ता, हमारी आस्था का खिलवाड़ करना बंद करिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं, हिंदू समाज और मजाक नहीं सहेगा, हिंदू समाज और इस प्रकार की मर्यादा भंग नहीं सहेगा। आप खेल खेलिए, आप बिल्कुल जीते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस प्रकार की भारत को तोड़ने की, हिंदू आस्था को तोड़ने की कोशिश जारी रखेंगे, हिंदू समाज आपको जवाब देगा। रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले रतन शारदा जी, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी पहली पार्टी हिंदुस्तान की बनने जा रही है जो केदारेश्वर मंदिर खुद बना रही है, और वो उसी एक्सेस पे है। मंदिर क्या? एक मिनट रुक जाइए यार, सुन तो लीजिए ना। नहीं, आप सुनेंगे कि मुझे बोलेंगे कि आप मंदिर बनाइए, आपका ये आपका अधिकार है। महाकुंभ के बारे में इस तरह की बातें करके मेरे पास बहुत मंदिर है, मुझे पुराने मंदिर चाहिए वापस। देखिए आप बताइए। देखिए, अभी एक मिनट रुक जाइए रतन शारदा जी, मुझे बोलने दीजिए। देसी कट्टे से मारे 4 लोगों के लिए आप हंगामा करते हैं, आपके वोट बैंक के लिए संभल में बात नहीं कर देते थे। संभल के अंदर संभल को ले आए, इंक्वायरी रुकवाते हैं, संभल के अंदर मंदिर मिलते हैं, उसका विरोध करते हैं। आप कौन होते हैं केदारेश्वर मंदिर बनाने वाला? मन बनाइए, हमें नहीं चाहिए। रतन शारदा जी, जब 150 मंदिर बनारस में डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ के शिवलिंगों को नाले में फेंक दिया था, तो आप शांत बैठे हुए थे। शर्म आपको आनी चाहिए। आपने क्या कर दिया? उसी बनारस में 150 शिवलिंग तोड़ के डेवलपमेंट के नाम पे नालों में फेंक दिए गए थे, और शांत बैठे थे। इसलिए यहाँ पर ज्ञान मत बांटिए। और मेरी बात सुनिए, कुछ किया मैंने हद पे बोला नहीं तो मैं when statements again Sanatan were made, when Sanatan was called dengue, malaria, AIDS, everything, what did you do? Did you even oppose your alliance partner at that time? So Vivek Silas, let's not go that road, because you have very little to defend yourself with. But let me ask Tehseen Poonawalla. Tehseen Poonawalla, should I read out to you what Mark Twain said in 1895 in his book? He said about the Kumbh Mela at that time, it is wonderful the power of a faith like that can make multitudes upon multitudes of the old and the weak and the young and the frail enter without hesitation or complaint upon such incredible journeys and endure the resultant miseries, which is getting into the cold water, without ever complaining. Mark Twain saw what Mahakumbh was. What has happened to the Samajwadi Party that it forgets what its own culture, what its own Sanskriti says? Navika, thank you so much for having me to share the onset. Many congratulations to the Uttar Pradesh government of India for organizing the Mahakumbh. And heartiest congratulations to all the devotees, and best wishes for Lohri, Mahasankranti and all the festivals in our country. 2 or 3 things the BJP spokesperson, with whom I had the honor of going to the Kumbh, when brought up the Maulana for the claims on the Prayagraj land, on the Waqf property. I am saying this on record, that Maulana works for the BJP. If not, why is the BJP not taking action? This is the same Maulana, without anyone asking it, was giving Muslims gyan on New Year's, how to celebrate or not. Anyone asks this Maulana? Every time the BJP requires him, these Maulanas come in. So please, we don't need these Maulanas. Number 2, yes, there was a terrible incident in 2013 during the Kumbh. A horrible incident. Same thing in Tirupati is the BJP government. In Hathras, where UP there was a BJP government, the person in charge of organizing that in Hathras is not being charge sheeted by the UP government. So the BJP has no rights to talk about anyone. As for what respected Akhilesh Yadav ji said, Akhilesh Yadav ji said people go for different reasons to the Kumbh. He cited a reason why he went. He cited a reason why he believes the BJP goes, and that is fine. He has his right to believe in it. How is that politics? If that is politics, is the BJP not doing politics? I think Akhilesh Yadav's statement should be taken in the context of what he said. If he's going for his reasons. So the context of the roti, the context of the roti of Swami Vivekananda was at a time when the British were ruling India, and at a time when there were famines in India. Has the context been lost on Mr. Akhilesh Yadav? I want to ask you. And I also want to ask you that Vivekananda ji also said, गर्व से कहो हम हिंदू हैं.
Is that forgotten by Akhilesh Yadav? Is that convenience? Has Mr. Akhilesh Yadav ever said roti is more important than the Safai Mahotsav? Shehzad Poonawalla, how come they remember one side of the story, not the other? Tehseen Poonawalla just now said that because that Maulana is our person, is making such statements. I am the national spokesperson. I have condemned that statement. But the Congress party does not even condemn it. In fact, it justifies Waqf by opposing the Waqf amendment. It defends the Waqf in Vijaypura and gives the land of the farmers there. In DMK, in Tamil Nadu, 1500-year-old gaon, which has a Shiv Mandir, has been given over to the Waqf. इस्लाम जो है, कुरान पाक जो है नाजिल हुई 1400 साल पहले, उसके बाद वक्फ का कॉन्सेप्ट आया. ये 1500 साल पुराना गांव क्लेम कर रहे हैं. वो इनके साथ है, उनकी सरकार है, पर कुछ नहीं बोलेंगे. तहसीन पूनावाला केवल आरोप लगाकर निकल जाएंगे. दूसरी बात, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई विवेक श्रीवास्तव इज अपोजिंग दिस. आई टेल यू व्हाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट ओनली मेंशन इन रामचरितमानस, इट इज मेंशन इन एन ए अकबरी ऑल्सो. इनको एन ए अकबरी पसंद है. दूसरी बात, ये सेलेस्टियल अलाइनमेंट जब होता है, देन द टर्म ऑफ 144 ईयर्स कम. सो इट इज रूटेड इन साइंस. Secondly, it is a casteless affair. It is a devotion and dip of unity, not just आस्था. Because कोई जाति नहीं देखता, सब जाति छोड़कर स्नान करते हैं, अमृतपान करते हैं. इसलिए तो आपको करना चाहिए. अरे आप अच्छा हज सुनिए विवेक जी बहुत अच्छा सवाल है. बहुत अच्छा सवाल है. हज के लिए बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई. आप सुन तो लीजिए. आप मुसलमान सुन तो लीजिए. आपने अच्छा सवाल पूछा है. हज में तो नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है. जाति की बात कही. प्रयागराज में सब जाएं. प्रयागराज में नॉन हिंदू जाना चाहिए. मुसलमानों में प्रयागराज में नॉन हिंदू जाना चाहिए, हाँ या ना? हमारे कुरान में बताइए. यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है इनका कि हज में तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता, पर जहाँ पर सबके लिए एंट्री खोल दो, और अगर नहीं करते तो कम्युनिस्ट और हिंदू समाज को गाली दो. पर सब जा रहे हैं. There are foreigners, there are people of German origin, there are people of Russian origin, there are people from various countries who've gone there. But let me get in Tushar. Let me get in Tushar. Tushar, today, shouldn't we call upon the Congress party to do a caste census at the Sangam, Triveni Sangam? कर ले caste census वहां पर. वहां there is no wall between any caste. There is this entire 1.6 crore people, the sea of people taking the holy dip in the Kumbh, calling out Har Har Gange, doing their Surya Namaskars. Now, I want to ask you, why this is lost? This Ekta ka Mahakumbh is lost on them. Only roti, pap, punya, only these things are remembered by them. गुड इवनिंग नाविका, एंड गिव मी 2 minutes. मैं कुछ बहुत जरूरी एक्सप्लेन करना चाहता हूं. कांग्रेस को एक बीमारी है ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन की. उनके प्रवक्ता, उनके एनालिस्ट, उनके सपोर्टर बैठ के हर चीज ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं. जब कोई हिंदू का कार्यक्रम होता है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, महाकुंभ, कोई भी छोटा त्योहार, बड़ा त्योहार, छोटी रस्म, बड़ा रिचुअल, कुछ भी हो, अरे एनवायरमेंट का क्या होगा, अरे पैसा यहां खर्च हो रहा है, अरे पैसा वैसे खर्च कीजिए. अखिलेश यादव रोटी की बात कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी 2010 में सुप्रीम कोर्ट को कहती थी हम तो फ्री में फूड ग्रेन्स नहीं देंगे, तब कहां रोटी की बात थी. अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो किसानों को डेट फ्री बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? ये सारी इंटेलेक्चुअलाइजेशन हिंदुओं के लिए क्यों? आपका त्योहार है, पर्यावरण के बारे में सोचिए. आपका त्योहार है, आप बजट के बारे में सोचिए, सारे पैसे के बारे में सोचिए. अखिलेश यादव की सरकार थी जो सेलिब्रिटीज को अवार्ड के नाम पर मंथली पेंशन देती थी 50,000 रुपए की. इनसे कोई पूछे कि एक्टर और क्रिकेटर को 50,000 रुपए हर महीने देने का क्या मतलब था? तब आपको याद नहीं आया कि रोटी की वैल्यू क्या है, रोटी एक गरीब व्यक्ति को चाहिए या नहीं चाहिए? आज महाकुंभ हो रहा है, 144 साल में पहला है ये. लोगों की एक भक्ति है, एक आस्था जुड़ी है. अब इनको इंटेलेक्चुअलाइज करना, ये सब एक ना तरीका है हिंदू वोट को बांटने का. आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो एकता है, वहां जाके कास्ट सेंसस करे, पता चलेगा कौन हिंदू है और कौन जाति के नाम पे बंटना चाहता है. पर वही बात है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी को एक ही काम आता है, माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेट करो, मेजॉरिटी वोट को डिवाइड करो. इनकी हर बात एक ही राह पर जाती है. मेजॉरिटी वोट को डिवाइड करो, हिंदू वोट को डिवाइड करो,
माइनॉरिटी वोट को डर के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे नहीं, डर के नाम पे कंसोलिडेट करो और इलेक्शन जीतो। और अब हिंदू ये तकनीक पहचान चुका है। Well, I want to just bring back Vivek Silas. Vivek Silas, whenever there is a mention of the Hindu dharma, अगर साधु संतों की बात है, अरे ये तो फूंक देते हैं, अरे ये तो भगवा पहनते हैं, ये आरएसएस के निशान मार्ग पर चलते हैं, हर हिंदू चीज से इतनी नफरत क्यों? नहीं, हिंदू धर्म से, सनातन से क्यों नफरत होगी और किस लिए नफरत होगी? लेकिन जो वाजिब प्रश्न है वो तो उठाए जाएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि वहां पर कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। नाविका जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान का सांसद रमेश कुमार वकवानी, जो कि पाकिस्तान से आया था इसी हिंदुस्तान में, 3 दिन बाद जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसी कुंभ मेले में लाल कारपेट बिछवा दी थी और मेरी और आपकी डिबेट हुई थी 2019 में, याद कर लीजिए। ये तो पाकिस्तान से लोगों को बुला के यहां पर डुबकी लगवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी? अभी हज की भी बात हुई है नाविका जी, तो क्या आंध्र प्रदेश में हज सब्सिडी नहीं दी जा रही है? वहां मौलानाओं को ये सैलरी दे रहे हैं, 5 लाख का लोन दे रहे हैं इंटरेस्ट फ्री, एक भी पैसा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स ये होती है। 100 करोड़ का अलग से बजट बना है आज के लिए आंध्रा में। मैं जवाब, ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है और सवाल हमसे करते हैं। मैं जवाब देता हूं। सर, आप, क्योंकि मैं ये लाना नहीं चाहता था, बट सिंस यू हैव रेज्ड इट, आप एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हैं, मुझे एक बात बताइए कि कितनी बार बोलोगे? क्यों आपको इसमें शर्माने? मैं मुस्लिम हूं, आप मैं क्यों? हाँ, तो मुझे सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। कल मान लीजिए कि इटली और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं रहते, पर आप वेटिकन जाना प्रतिबंधित हो जाएगा आपका? क्या मान? वेटिकन आपकी धार्मिक स्थान है, तो अगर कोई हिंदू की धार्मिक स्थान महाकुंभ है तो वो जाएगा वहां पे, वो किसी भी देश से हो। सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में बोला, इज दिस द ओनली वे? इज दिस द ओनली वे? इज दिस द ओनली वे? अपमान हो सकता है? इज दिस द ओनली वे यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन? बांग्लादेश भी आपको अब मुझे बात तो बांग्लादेश ने भी महाकुंभ में अब आपको बांग्लादेश याद आएगा। महाकुंभ में धार्मिक स्थान की बात हुई है, बांग्लादेश में हमारा कोई ऐसा धार्मिक स्थान मान लीजिए। अरे क्या 1 मिनट विवेक, को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। नाविका, दिस इज नॉट द कॉन्वर्सेशन। इटली और इंडिया में 1 मिनट, one at a time. इटली को बुला लिया। अरे भाई, मोदी जी को नहीं बुलाया। नो, कैन यू प्लीज लेट मी मेक माई पॉइंट? यू स्पीक आफ्टर 30 सेकेंड्स, आप रुक जाइए, उसके बाद ये, इससे आपके पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे सर, प्लीज। आप कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान, आपको पता है हम लोग के जनगण मन में सिंध का भी जिक्र है, क्योंकि अखंड भारत की जो परिकल्पना है, नॉट द पॉलिटिकल भारत, जो आइडियोलॉजिकल भारत है, वो तो उसके सब जगह फैले हुए हैं। तो क्या सिंध को हटा दें हम लोग? इसीलिए मैं कह रहा हूं, बेवकूफी वाली बात मत कीजिए प्लीज। में मिला दीजिए, प्लीज लेट मी मेक माय पॉइंट। क्या बात कर रहे हैं? स्टॉप इंटरनेट को मिला दीजिए ना। नाविका को मिला नहीं पाए। आपने बोला रोटी का सवाल है। अल हजरात हज हाउस गाजियाबाद में 51 करोड़ 2016 में बना, गलत बोलो क्या? अल हजरात हज हाउस 2016 में आपने 51 करोड़ का बनाया, बोलो गलत है। आपको क्या आपत्ति है तो बताइए। हज के लोग तो वहां जाके खर्च करते हैं, ये तो भारत में खर्च हो रहा है पैसा। तो हज हाउस खर्च करने के लिए हज हाउस बने 51। तब रोटी क्यों नहीं याद आई? सवाल सिर्फ इतना है, एंड आई जस्ट वांट टू से दिस। I thought on a day when the Mahakumbh has been called Ekta Ka Mahakumbh by the Chief Minister of Uttar Pradesh, why has it become so divisive? Why do those people who want to only appease find fault with every single Hindu festival or Hindu cultural issue? Why will they not raise these questions when other festivals take place? That's the question people of India are asking tonight. We leave it at that. Thank you very much to all my panelists for joining me on debate number 1.